Okay boys, today our topic is lipid and these are bio micromolecules. And why we call them a biomicromolecule is an important question, because their molecular weight is less than 1000 Dalton. Hence they are called biomicromolecule. Though we get them in a cellular pool in a insoluble fraction along with acids, nucleic acid and protein and polysaccharide, okay, and they do not get dissolved. So now let us just see what are lipids. As I already told you, lipids are biomicromolecule, and very important point for you that these are, always remember, water insoluble. Lipids are not soluble in water, that is why insoluble, and they may be a simple fatty acid. As you know in the organic chemistry, जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, हायर मॉलिक्यूलर वेट के जितने भी एसिड होते हैं और कार्बोनिक ऑक्साइड, दे ऑल आर फैटी एसिड, बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर फैट की तरह होते हैं, इसलिए उनको फैट कहते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू हियर टू लर्न. अगर हम किसी भी फैटी एसिड को देखें तो आपको ये पता चलेगा, जैसे मैं यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए बना रहा हूँ, ये और ये लॉन्ग, ठीक है, इट इज़ ए लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, एंड हियर यू सी क्लियरली वन ऑफ द मैथिल ग्रुप एंड अदर वन इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके, एंड we see here a long chain of CH2. Number may be 14, 16, 18 and 20 up to 20. Okay, and these very important for you to learn that these are amphipathic molecule. Is a very important question for you. Why are they amphipathic? This is the question. Any amphipathic molecule. Why? Because it possesses polar end and non-polar end. And what are these two ends in a fatty acid is very important to know. That methyl group just on the terminal end and carboxylic group on the another terminal end. Why we call them? Because they both are group. Polar group, it is here carboxylic group. Carboxylic group is a polar group, and while methyl group is a non-polar. And what is polar? Polar region where the charge is there. Carboxylic group on proton donation becomes negatively charged, okay, while the remaining portion that is non-polar having no charge at all. Now just see how the beauty of amphipathic molecule come before you. Let us just presume this is the surface of the water. This is the surface of water, and whenever you pour either oil or a lipid, they do not get solved in the water, insoluble in water, and at that time this is the aqueous medium, and carboxylic group remain toward the water side and non-polar side remain away from the water. So what does it mean? Carboxylic group is a hydrophilic in nature, while methyl group side chain is a non-polar, okay, and now this one is hydrophilic and this one is hydrophobic, यानी water repelling, पानी से दूर, और ये क्या होता है? टूवर्ड्स द पानी. तो पानी की ओर जो आकर्षित होता है वो इसका पोलर एंड आकर्षित होता है. ये इसकी बड़ी खास बात होती है. इट हैज़ ए चार्ज एंड हैविंग नो चार्ज. जिसके पास चार्ज है वो आपका वाटर लविंग है, द्रव स्नेही जिसे कहते हैं, और अगर पानी को दूर कर रहा है, वाटर रिपेलेंट है, तो उसको हम हाइड्रोफोबिक नेचर कहेंगे. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि फैटी एसिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हैविंग पोलर हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर मैथिल ग्रुप, एंड दैट चेन में हैविंग 14 कार्बन, 16 कार्बन, 18 कार्बन और मे बी 20 कार्बन एट. ओके, बम. नाउ यू सी हियर lipids biomolecule, micromolecule, water insoluble, and here point is clear, fatty acids are amphipathic.
ड्यू टू पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर हाइड्रोफिलिक होता है और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होता है। आइए, दीज आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि फैट से मिलते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड होते हैं, इनको हम कहते हैं। और ये एम्फीपैथिक नेचर मैंने आपको बता दिया है, हैविंग पोलर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इट कैन डोनेट HN डिजॉल्व है, एंड नॉन पोलर एंड दैट इज योर मैथिल ग्रुप या R ग्रुप, ठीक है। फैटी एसिड जो है पोलर एंड हाइड्रोफिलिक एंड कार्बोफिलिक एंड इट गेट नेगेटिवली चार्ज आफ्टर लूजिंग ए 1 प्रोटॉन। तो चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो पानी के साथ इंटरेक्शन करके आराम से सेट हो जाता है, ठीक है। और R ग्रुप जो होता है वो इसका हाइड्रोफोबिक होता है। तो रिमेंबर इन इंग्लिश, हाइड्रोफिलिक इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक इज नॉन पोलर एंड, ओके। फैटी एसिड जो है दो तरह के हो सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त फैटी एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल सहसंयोजी बंध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। दोज फैटी एसिड हैविंग ए कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन देयर कार्बन एटम, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड, ओके। एंड ऑन द अदर साइड, अगर किसी वसी अम्ल में किसी जगह पर एक डबल बॉन्ड है, 2 हैं, 3 हैं, 4 तक, अगर उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड है, ऐसे फैटी एसिड को हम असंतृप्त या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। क्लैरिफाई योर पॉइंट हियर, फैटी एसिड में बी सैचुरेटेड having a single bond covalent bond and unsaturated having a double covalent bond, either 1 or 2 or 3 or 4. The next question will come for you, okay. So this point are clear to you. Now see glycerol. Glycerol is a very simple type of a lipid because it has 3 hydroxyl group attached to 3 different carbon atom. Why? Just you see here, if I have drawn the structure somewhere उसमें क्या, अगेन ड्राइंग CH2, जस्ट वेट, जस्ट हियर, CH2OH एंड CHOH एंड CH2OH। अगर बैकग्राउंड, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, इट possesses 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन एटम। अलग अलग कार्बन एटम पर 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसको हम 1,3 ट्राइप्रोपेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल भी जो है एक प्रकार का आपका लिपिड है, ठीक है। क्यों? इसमें 3 हाइड्रोजन, ट्राई हाइड्रोक्सी, इसलिए 1 पर, 2 पर, 3 पर, ओके। तो दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू यू ही, ठीक। एंड लास्ट, मेनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी। बहुत सारे ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें ये दोनों होते हैं, ग्लिसरॉल भी होता है, फैटी एसिड भी होता है। आपको ये बता दें कि ये जो OH ग्रुप जो है ये किसी भी फैटी एसिड के साथ जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? ईस्टर बॉन्ड बनाता है। ये देखिए, यानी इंटरेक्शन बिटवीन OH ऑफ द एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एसिड, दे फॉर्म ईस्टर बॉन्ड, ओके। अगर एक ईस्टर बॉन्ड है तो आप मोनो ईस्टर, 2 तो डाई ईस्टर, 3 है तो ट्राई ईस्टर कहते हैं। तो याद रखिए, ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ मिल करके ग्लिसराइड बनाता है और इस प्रोसेस को हम ईस्टरीफिकेशन भी कहते हैं, ओके। तो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सैचुरेटेड फैटी एसिड। पहला सवाल ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, दो फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है MCQ का कि इसमें से कौन सा जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो हमने आपकी सुविधा के लिए तीनों के फॉर्मूले लिख दिए हैं और उनके कार्बन नंबर भी मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं। ऑलवेज रिमेंबर, पायमेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, एरेकिटिक एसिड। रिमेंबर, एरेकिटिक एसिड, नॉट एरेकिडोनिक, डोंट गेट कंफ्यूज, जरा भी इसमें वो भूल ही ना करें। ये पायमेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके संतृप्त वसीय अम्ल के, यानी 3 एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। द फर्स्ट वन इज पायमेटिक एंड स्टीयरिक एंड एरेकिटिक एसिड। अनदर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस में कितने कितने कार्बन हैं। रिमेंबर, याद रखिए,
पामिटिक एसिड में 16 कार्बन है और स्टीयरिक में 18 कार्बन है और एराकिटिक एसिड में 20 कार्बन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड है 16, 18 और 20 एंड योर आंसर इज हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट आर द एग्जाम्पल, इसके क्या क्या उदाहरण हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दे आर 5 इन नंबर और इनको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है वो देखिए POLLA, ये देखिए पोला, जिसे हिंदी में पोला पिलपिला कहते हैं, पोला। तो वो पिलपिला ये है आपने P फॉर पामिटोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेट हो रहे हैं और आप प्रैक्टिस करते हो फिर भी भूल जाते हो, तो इट इज़ बेटर टू जस्ट टू अंडरस्टैंड, गिव सम टाइम एंड फोकस ऑन दीज 5 फैटी एसिड। ओके, पाँचों के पाँचों असंतृप्त फैटी एसिड है। कम से कम किसी भी अनसैचुरेटेड में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब सवाल उठता है किस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कितने कितने डबल बॉन्ड हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज़रा गौर फरमाइए। पामिटोलिक में 16 कार्बन है और ओलिक, याद रखिए ओलिक पहला O है, 18 कार्बन है और लिनोलिक में आपके 18 कार्बन है और लिनोलेनिक में आपके 18 हैं। जरा जार गौर देखिए, 16 वाला आपका एक ही है और 18 कार्बन वाले आपके 3 है, बहुत ही खतरनाक जो 18 वाले 3 है और 18 में भी ओलिक एसिड पहले है, फिर लिनोलिक है और याद रखिए लेनिक वर्ड जो है वो लिनोलेनिक चौथा वाला है और जो एराकिडोनिक एसिड है उसमें आपके 20 कार्बन है। एक तो आपका ये सारा प्रॉब्लम आपका यहाँ तक ऐसे ख़त्म हो जाता है। अनदर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट फोकस, वो है किस किस असंतृप्त फैटी एसिड में कितने कितने डबल बॉन्ड होते हैं। जस्ट सी हियर, पामिटोलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, कहीं मुझे जगह मिल जाए तो अगर मैं यहाँ ये बनाऊँ और ऐसे करके करूँ और अगर किसी एक जगह डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो ये कैसा होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। संतृप्त में डबल बॉन्ड नहीं होता है। ओलिक में 18 कार्बन है, लिनोलिक में 18 कार्बन है और ये आपके लिनोलेनिक में 18 है। याद रखिए 123 नंबर याद रखिए, पहले वाले में एक डबल बॉन्ड है और लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड है और लिनोलेनिक में आपके 3 डबल बॉन्ड है। ये और पाँचवां वाला जो है एराकिडोनिक एसिड जो है इसमें 20 कार्बन आपके 4 हैं। एक डेफिनेट कार्बन नंबर होता है, नंबर मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, इसलिए आपको बचाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है कि 3 किस्में हैं, 2 किस्में हैं और 4 किस्में हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपका एराकिडोनिक एसिड है जो कि 20 कार्बन रखता है और 4 उसमें डबल बॉन्ड हैं। और दूसरा सवाल इसी का 3 वाला कौन है, वो आपका लिनोलेनिक वर्ड याद है, लिनोलिक। इसमें दोनों में कन्फ्यूज है, जो लीक है उसमें 2 हैं और लेनिक में आपके 3 हैं। ओके, टू जस्ट टू समराइज related to unsaturated fatty acid, and I am going to tell you that there are 5 in number. Palmitoic acid contains 16 carbon, oleic acid 18 carbon, linoleic 18 and linolenic 18 and arachidonic. Now the question, the most unsaturated fatty acid, answer arachidonic acid. The number of double bond, thick 4 found in A, B, C, D. Your answer is arachidonic. Okay, or another question, how many 3 triple double bond in which acid? Linolenic acid. Okay, and here 2 and here 1. So okay, summarize. Now fatty acid are esterified with glycerol. Remember मैंने आपको पहले ही बताया है कि अल्कोहल के साथ अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड मिलता है तो वाटर का मॉलिक्यूल उसमें निष्कासित होता है और उससे जो है ईस्टर बॉन्ड बनता है। ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोजन ऑफ द अल्कोहल एंड OH ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप मिल करके पानी निकालते हैं और हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं वाइपर और डस्टर। जस्ट यू सी हियर, ये अगर किसी ग्लिसरॉल के साथ, मैं वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा, देखिए CH2OH एंड प्लस आपका ये और ये और ये और ये R,
सपोज करिए ये आपका फैटी एसिड है, ठीक है, और ये आपका ग्लिसरॉल है, ओके। और ये देखिए, अब आप बड़े आराम से इसको देखिए कि H जो है इसका एल्कोहल का और OH जो है एसिड का, इससे क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो ज़रा देखिए गौर से, CH2O और डायरेक्टली जुड़ा किससे है, C से, और ये रिमेंबर ये जो मैं जो बना रहा हूँ ये है आपका ईस्टर बॉन्ड। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड ईस्ट्रीफिकेशन, ओके। अब यहाँ से हम हटते हैं, देखिए फैटी एसिड आर ईस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल टू फॉर्म आइदर वन फैटी एसिड देन यू से मोनोग्लिसराइड, अगर दो हैं तो डाइग्लिसराइड, और अगर तीसरा भी जुड़ जाता है तो ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। यानी ग्लिसरॉल जो है कैन फॉर्म मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड, ओके। कम टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ लेट अस स्टडी मोर क्वेश्चन, कुछ और प्रश्न भी हैं लिपिड संबंधित उनको आप देखिए। अगर कोई पूछता है व्हाट आर फैट्स एंड ऑयल्स, ओके, तो रिमेंबर फैट्स एंड ऑयल्स आर ईस्ट्रीफाइड ग्लिसराइड। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले ही आपको बताया है कि ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर के पानी का निष्कासन होकर के मॉलिक्यूल का आपके ईस्टर बॉन्ड बनता है, उससे जो बनते हैं कंपाउंड उन्हें हम ग्लिसराइड कहते हैं, यानी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो फैट और ऑयल्स आर ईस्ट्रीफाइड ग्लिसरॉल, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल इज अनदर क्वेश्चन। तो फैट एंड ऑयल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, ओके। नाउ व्हाट आर ऑयल्स? Oils are liquid at a room temperature, okay, and have a lower melting point. इनका melting point क्या होता है, कम होता है। और बेस्ट एग्जांपल आपका गिंगेली ऑयल जो है NCERT बुक में दिया हुआ है। तो आपका प्रश्न ये है कि इसमें से कौन सा जो है एग्जांपल ऑयल का है, गिंगेली ऑयल, ओके। एंड ऑयल की और ख़ास बात है, ज़्यादातर इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। रिमेन लिक्विड इन द विंटर, जाड़े में भी आपका जो है सरसों का तेल आपका जमेगा नहीं, नारियल का तेल आपका जम जाता है। नारियल का तेल में सैचुरेटेड फैटी एसिड है और सरसों के तेल में आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बना रहता है, ओके। नाउ फैट एंड ऑयल का ज़रा देखिए, इसमें आपके दो कंपोनेंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला वाला ग्लिसरॉल है, फिर आपके फैटी एसिड है। फैटी एसिड हो सकता है एक हो, दो हो, तीन हो। तो ऑन द नंबर ऑफ फैटी एसिड जो है, और वो फैटी एसिड जो है दो तरह के हो सकते हैं, आइदर सैचुरेटेड हैविंग ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और हैविंग ए डबल बॉन्ड, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। नाउ फैट्स आर मेनली फाउंड इन एनिमल, ठीक। ज़्यादातर जो है वसा जो होती है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, एनिमल के। ऑन व्हाट? एडिपोज टिश्यू, यानी हमारी जो स्किन है, किसी की पतली है, किसी की मोटी होती है, तो स्किन इट डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट, यानी जिनके नीचे जो है फैट होती है उसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। अगर बहुत मोटी हो जाती है, जैसे आपका व्हेल है, तो उसे हम कहते हैं ब्लबर टिश्यू। ये जो फैटी टिश्यू होते हैं ये आपके हीट इंसुलेशन का काम करते हैं, हमारे बॉडी की जो हीट जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती है। इसलिए रिमेंबर, फैट जो होते हैं ज़्यादातर आपके एनिमल में पाए जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल चर्बी की मोटी परत जो होते हैं एनिमल के स्किन में पाई जाती है। जबकि ऑयल जो होते हैं ये ज़्यादातर आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं। तिल का ऑयल है, सरसों का ऑयल है, लेकिन नारियल का ऑयल सैचुरेटेड होता है, वो फैट हो जाता है। सम लिपिड हैव फास्फोरस, कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा, ये आपके NCERT किताब में बने हुए हैं, ये ऑलरेडी टोल्ड यू कि पोलर एंड और नॉन पोलर एंड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, दो फार्मूले आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है पामिटिक एसिड, एक दिया हुआ है स्टेरिक एसिड। पामिटिक में 16 कार्बन है और स्टेरिक में 18 कार्बन है। अब आप ज़रा देखिए कि किस तरह से जो है, अगर हम ग्लिसरॉल के एक पहले वाले कार्बन के साथ फैटी एसिड मिलाते हैं तो आपने बताया था मोनोग्लिसराइड। तो देखिए यहाँ एग्जांपल देखिए, मोनोग्लिसराइड है, ठीक है, एक फैटी एसिड से। और ये जो आप जो देख रहे हैं, आई एम इंडिकेटिंग, यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ठीक। अगर एक ईस्टर बॉन्ड है तो आपका मोनोग्लिसराइड है, अगर दो हैं तो डाइग्लिसराइड है, और अगर तीन हैं तो ट्राइग्लिसराइड है। बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या होगा, पानी जो है 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और आपके ग्लिसराइड बन जाएगा।
यानी OH जो होता है किसका, एसिड का, और H किसका, एल्कोहल का। ओके, सो नाउ यू सी सम लिपिड है फास्फोरस। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस वाले, यहाँ ज़रा देखिए गौर से, यहाँ पर हमने HOH, POH और डाइवेलेंट ऑक्सीजन, और ये देखिए ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड। कभी कभी क्या होता है, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ता है। फैटी एसिड तो जुड़ते ही हैं, और फॉस्फोरिक एसिड जो है H3, तो इसका जो OH जो है ये इसके H के साथ पानी निकल जाता है, तो फॉस्फोरिक एसिड जो इनऑर्गेनिक एसिड है ये भी इसके साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है। ऐसे लिपिड जिसमें फॉस्फोरस है कि नहीं, ये सारे सही हैं लगभग। ये ना भी बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, CH2O C आपका ये, क्योंकि मेन चीज़ हमारी जो है वो आपका याद रखिए वो ये है, ठीक। ये अल्कोहल का O है, और जबकि OH आपका कार्बोक्सिल ग्रुप को जाता है, पानी निकल जाता है। तो इस तरह ये सारे 3 ईस्टर बॉन्ड आपके हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि सम लिपिड है फास्फोरस, तो अगर फास्फोरस कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो इसे अब हम कहेंगे फास्फोलिपिड, ठीक है। 2 फैटी एसिड हो जाएंगे और एक आपका, ये आपका फास्फोलिपिड हो जाता है। और आपको पता है फास्फोलिपिड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। पूरी लिपिड की मेम्ब्रेन जो होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसलिए देखिए फास्फोलिपिड इंक्लूड, इसमें कितनी चीज़ें आती हैं, सिफेलिन एंड लेसाइथिन और कार्डियोलिपिन, ठीक है, और प्लाज्मेलोजन। याद रखना ये सब के सारे आपके कॉन्जुगेटेड आपके लिपिड्स हैं जो कि फास्फोरस लिपिड के साथ होता है। इसमें 1, 2, 3 सब में फास्फोरस होगा ही होगा। फास्फोलिपिड जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है किसका, बायो मेम्ब्रेन की, चाहे वो सेल की मेम्ब्रेन हो या माइटोकॉन्ड्रिया की हो या क्लोरोप्लास्ट की हो या गोल्जी बॉडी की हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। वेरेवर द बायो मेम्ब्रेन्स आर देयर द ओशन ऑफ द लिपिड, व्हाट लिपिड, फास्फोलिपिड इज देयर, जिसके ऊपर आपकी प्रोटीन की लेयर लगी होती हैं। 2 मेजर कॉन्जुगेटेड लिपिड, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर कॉन्जुगेटेड लिपिड। लिपिड के साथ कोई और चीज़ मिली होती है तो आपका जैसे फास्फेट मिला है तो फास्फोलिपिड, और स्पिंगोनिन अगर अमीन मिला हुआ है तो स्पिंगोलिपिड होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, फास्फोलिपिड एंड स्पिंगोसिन। लास्ट में देखिए फाइनल आपके जो NCERT की बुक में जो डायग्राम बने हुए बायो मॉलिक्यूल में, उनको जरा एक एक करके देख लीजिए आप। यानी मैथिल ग्रुप जो है वो नॉन पोलर है और वो आपका पोलर है। दोनों के फार्मूले मैंने आपको लिख दिए हैं। ये देखिए CH3 14 CH2 ये 16 है, जी इसमें 16 है, इसमें आपके 18 है। कार्बन नंबर 1, दिस वन इज द फर्स्ट, ठीक है। एक ये 14, एक 15 और एक 16। एंड हियर देखिए इसका एक हुआ 16 और एक 17 और एक 18 हो जाता है, ठीक। ट्राईहाइड्रिक आपका अल्कोहल देखिए, एक OH, दूसरा OH, ये प्राइमरी अल्कोहलिक है और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। ये भी आपको बता दिया मैंने, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड। अब एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके NCERT में एग्जाम में नीट में आता है, वो डायग्राम इसमें बना हुआ है। ये है आपका लेसाइथिन। आप जानना चाहते हो कि ये कैसे बनता है, हाउ इज इट फॉर्म। नाउ यू सी द कार्बन नंबर 1, 1, 2, 3, ठीक। पहले नंबर पे आपका क्या है, ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये देखिए, और ये आपका ईस्टर बॉन्ड है, ठीक है। और ये एक फैटी एसिड ऑलरेडी जुड़ा R1 R2, 2 फैटी एसिड, एक कार्बन जो पहला है जिसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस जैसे किसी की चुटिया और बड़ा सिर करना है तो हेड उसका बड़ा हो जाएगा, यानी पोलर हेड होता है, बड़ा होता है। और ये देखिए इसके साथ हम एक OH के साथ इसको मिलाते हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि ट्राई मैथिल एथेनॉल, जरा केमिस्ट्री का मजा लूटिए। ये आपका अमोनिया है, ऑल द हाइड्रोजन एटम ऑफ द सब्सटीट्यूटेड बाय मैथिल ग्रुप, तो आपके पास 3 मैथिल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, तो ये क्या हुआ, ट्राई मैथिल। और किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एथेनॉल के साथ जुड़ा हुआ है, अल्कोहल। तो एथेनॉल के एक कार्बन के साथ दूसरे के साथ अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है मैथिल ग्रुप होता है, इसलिए आपका नाम का ट्राई मैथिल एथेनॉल अमीन, ओके। तो ये जो ट्राई मैथिल एथेनॉल अमीन है इसे हम कहते हैं कोलाइन। जब ये कोलाइन आपका
फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ता है, एक और ईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, ये देखिए इसका OH और इसका OH, पानी निकल जाएगा, ये बनेगा, तो ये आपका बन जाता है लेसाइथिन। तो जनरली आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया जाता है कि विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ इट, तो आप याद रखिएगा 2 फैटी एसिड्स हैं, 1 और 2, और प्लस फॉस्फेट है, और प्लस ये जो है ट्राई मेथिल एथेनॉल स्ट्रक्चर है। और आपको मालूम होगा कि एसिटिल कोलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसमें भी आपका कोलाइन के साथ एसिटिल ग्रुप जुड़ा होता है, तो उस तरह भी याद रख सकते हैं, तो ये आपका लेसाइथिन हो जाता है। सो ये थी हमारी पेशकश आज के दिन आपके NCERT किताब से लिपिड के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।